Hello students, today I am going to discuss about the fourth part of the surface chemistry and that is also the last part of surface chemistry, and today we will discuss about purification of colloidal solution and some other properties of colloidal solution. So let's discuss about the purification of colloidal solution. The process which is used for reducing the amount of impurities present in colloidal solution to minimum is known as purification of colloidal solution. तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो भी इम्प्योरिटी है उसको कम से कम कर देना, उसको रिड्यूस कर देना, दैट इज़ नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने की कुछ मेथड्स हैं जिसको हम वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं. Purification of colloidal solutions. The process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum is known as purification of colloidal solution. The purification of colloidal solution can be done by following methods. Dialysis. It is a process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by means of diffusion through a suitable membrane. The apparatus used for this purpose is called dialyzer. So students, you can see the first method for purification of colloid is dialysis. So it is the process of removing a dissolved substance from a colloidal solution by diffusion through a suitable membrane. The apparatus used for this purpose is known as dialyzer, and the suitable membrane is actually some semi-permeable membrane, so it allows some particles to pass through it. So you can see in this figure there is a dialyzing membrane in the form of bottle, you can say, and in this container actually colloidal solution is kept. So through and outside of this membrane there is a tub in which water is present. Now when impurities which is present in this dialyzer, uh, it pass through semi-permeable membrane, but colloidal particles cannot pass through this semi-permeable membrane. So electrolyte or impurity pass through semi-permeable membrane and go into water, while colloidal particles remain inside the semi-permeable membrane. Electrodialysis. The process of dialysis is quite slow. It can be made faster by applying an electric field if the dissolved substance in the impure colloidal solution is only an electrolyte. Then the process is known as electrodialysis. Second method, it is known as electrodialysis. So actually the process of dialysis is slow. उसको हम फास्ट कर सकते हैं यदि हम डायलाइज़र में एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें. एंड सेकेंड कंडीशन, जो इसमें इम्प्योरिटी है यदि वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में है, इलेक्ट्रोलाइट यानी कि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैं इम्प्योरिटी के फॉर्म में, तब इलेक्ट्रोडायलिसिस का यूज़ करते हैं. इस इलेक्ट्रोडायलिसिस में डायलाइज़र होगा यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, और लेकिन साथ ही साथ दो इलेक्ट्रोड भी आपको दिखाई दे रहे हैं, एनोड एंड कैथोड. तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटी के फॉर्म में इसमें प्रेजेंट है वो इम्प्योरिटीज़ अपने ऑपोजिट चार्जेस की तरफ मूव करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. यानी कि यदि पॉजिटिव इम्प्योरिटी है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगी, यानी कि कैथोड की तरफ जाएगी, एंड यदि कोई नेगेटिव इम्प्योरिटी है तो वो एनोड की तरफ मूव कर जाती है. तो इस तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलिटिक इम्प्योरिटी है उसको रिमूव कर सकते हैं बाय इलेक्ट्रोडायलिसिस से. सो डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस में मेन डिफरेंस ये है कि इलेक्ट्रोडायलिसिस में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रोड्स होंगे. Ultrafiltration. In this method, colloidal solutions are purified by carrying out filtration through special type of graded filters called
Ultrafilters. These filter papers allow the electrolytes to pass through them but do not allow colloidal particles. Purification of colloidal solutions. The process used for reducing the amount of impurities to a requisite minimum. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की. Here you can see the first property is colloidal colligative properties. हमने physical chemistry में भी पढ़ा हुआ है. Colloidal particles being bigger aggregates the number of colloidal particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to true solution. Hence colloidal solutions show colligative properties. तो कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करेंगे. सेकेंड इज टिंडल इफेक्ट. कोलाइडल पार्टिकल्स दे शो टिंडल इफेक्ट बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स बीइंग बिगर इन साइज दे स्कैटर लाइट इन ऑल डायरेक्शन. तो यहाँ पर आप टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं. शुरू में इस बीकर में ट्रू सॉल्यूशन रखा गया है और इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन रखा गया है. So when light pass through these two solution, true solution and colloidal solution, so colloidal solution के जो particles हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं और यहाँ पर आपको कोन के फॉर्म में लाइट दिखाई देती है. इसे ही टिंडल इफेक्ट कहा जाता है. देन कलर ऑफ द सॉल्यूशन. जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो एक पर्टिकुलर कलर एग्जिबिट करते हैं when light passes through it. वो इसलिए क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो किसी न किसी वेवलेंथ की लाइट को स्कैटर करते हैं. तो किस वेवलेंथ की लाइट को वो स्कैटर कर रहे हैं एक्चुअली वही कोलॉइडल सॉल्यूशन का कलर होगा. तो ये रेड भी हो सकता है, ये पर्पल भी हो सकता है, ये ब्लू भी हो सकता है. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ब्राउनियन मूवमेंट. तो एक्चुअली when colloidal solution they are viewed under powerful ultra microscope, the colloidal particles are appear to be in a state of continuous zigzag motion. जो continuous zigzag motion है colloidal particle का that is known as Brownian movement. एक्चुअली colloidal particle हमेशा मूव करते रहते हैं, वो रेस्ट वाली स्टेज में कभी नहीं होते. तो इस मूवमेंट को ही जो जिगजैग मोशन है कोलाइडल पार्टिकल्स का उसे ब्राउनियन मूवमेंट कहते हैं. तो ये एक्चुअली कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं कोलाइडल सॉल्यूशन की कि वे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, कलर शो करते हैं एंड ब्राउनियन मोशन होता है इनमें. नेक्स्ट ये दिस इज़ ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स कि जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं they always carry some charge on them and this charge may be positive and negative. The nature of this charge is the same on all the particles in a given colloidal solution. तो किसी भी colloidal solution में किसी भी एक तरह का चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. तो लेकिन एक जैसा ही होगा. कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्ट के. जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ये पॉजिटिव कोलॉइडल सॉल है. जो मेटल्स के सॉल होते हैं चाहे वो कॉपर, सिल्वर या गोल्ड का सॉल है, दे आर नेगेटिवली चार्ज सॉल. उसी तरह से जो मेटलिक सल्फाइड सॉल हैं वो भी नेगेटिव चार्ज सॉल होंगे. तो मेटल या मेटल से रिलेटेड जो सॉल्स हैं दे आर ऑलवेज नेगेटिव, while hemoglobin is positively charged salt. अब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी करते हैं प्रिफरेंशियल एड्जॉर्प्शन ऑफ आयंस, यानी कि सॉल्ट के ऊपर कौन सा आयन एड्जॉर्ब करेगा. ये जो आयन है ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. इसी को देखते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से. when silver nitrate solution is added to potassium iodide solution,
तो कंडीशन क्या है, सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब उसका रिजल्ट क्या होगा कि सिल्वर आयोडाइड बन जाता है दोनों के रिएक्शन से। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड, उस कंडीशन में सिल्वर आयोडाइड बनेगा, सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट होगा। दिस सिल्वर आयोडाइड एड्सॉर्ब आयोडाइड आयंस फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्शन मीडियम में से उसने एड्सॉर्ब किया आयोडाइड आयन को, एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन रिजल्ट्स। तो इस तरह से यहाँ पर आप देखिए सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट हुआ और उसके ऊपर आयोडाइड आयन एड्सॉर्ब हो गया, तो हमको मिल गया नेगेटिवली चार्ज्ड कोलाइडल सॉल्ट। दूसरी कंडीशन है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर कंडीशन हमने क्या कर दी, व्हेन पोटेशियम आयोडाइड इज एडेड टू सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो प्रेसिपिटेट यहाँ पर भी सिल्वर आयोडाइड का बना है, लेकिन सिल्वर आयोडाइड ने जो एड्सॉर्ब किया है वो सिल्वर आयन को एड्सॉर्ब किया है। तो सिल्वर आयोडाइड के ऊपर सिल्वर आयन से एड्सॉर्ब हो गए और यहाँ पर मिला है हमें पॉजिटिवली चार्ज्ड कोलॉइडल सॉल्ट। तो इस तरह से डिपेंड करता है कि कोलॉइडल सॉल्ट पार्टिकल ने कौन से आयन को अपने ऊपर एड्सॉर्ब किया है, उसे ही हम कहते हैं प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन ऑफ आयंस। देखिए यहाँ पर आप दोनों तरह के आयंस देख सकते हैं। सिल्वर आयोडाइड एक्चुअली नेगेटिव, सिल्वर आयोडाइड ने अपने ऊपर सिल्वर आयंस को एड्सॉर्ब किया है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पॉजिटिव सॉल्ट मिल जाता है, और यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड ने नेगेटिव आयंस को एड्सॉर्ब किया है। सो आयोडाइड आयंस, इस तरह से आपको ये सॉल्ट मिलेगा। प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन का एक और एग्जांपल है, इफ़ FeCl3 इज एडेड टू एक्सेस excess of hot water, a positively charged salt of hydrated ferric oxide is formed due to adsorption of ferric ion। तो जब फेरिक क्लोराइड को हमने वाटर में ऐड किया, एक्सेस ऑफ हॉट वाटर, तो हमको पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट मिलता है। देखिए ये फेरिक ऑक्साइड है और इसके ऊपर एड्सॉर्ब हो गया Fe3 पॉजिटिव आयन, तो हमको मिला पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट। वहीं सेकेंड कंडीशन, व्हेन फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, अ नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट इज ऑब्टेन विथ एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। दूसरी कंडीशन में जब फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हमको नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट मिलता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड के ऊपर यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो नेगेटिवली चार्ज सॉल्ट मिलेगा। तो ये प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब इस प्योरिफिकेशन में ही या प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलॉइडल सॉल्ट, इसमें प्रॉपर्टीज़ में एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्चुअली क्या है कि यू नो दैट कोलॉइडल पार्टिकल्स हैव आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। तो सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या नेगेटिव चार्ज होंगे। तो यही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज यदि हम कोलॉइडल सॉल्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, यानी कि इलेक्ट्रोड्स लगा दें, तो यदि पॉजिटिव चार्ज होंगे तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, और यदि नेगेटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। सो दिस मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स towards their respective electrodes, that is known as electrophoresis. Electrophoresis. The particles of the colloidal solution are electrically charged. The existence of the electric charge is shown by the phenomenon of electrophoresis. It involves the movement of colloidal particles either towards the cathode or anode under the influence of electrical field. The colloidal solution is placed in a U-tube fitted with platinum electrodes. On passing an electric current, the charged colloidal particles move towards the oppositely charged electrode.
electrophoresis. Now next property that is coagulation or precipitation. Coagulation or precipitation, this is the process of setting of colloidal particles. The setting of colloidal particles is called coagulation or precipitation of the sol. तो कोलाइडल पार्टिकल्स का सेट होना, सेटल हो जाना बॉटम में, दैट इज़ नोन एज प्रेसिपिटेशन और कोएगुलेशन. कोलाइडल पार्टिकल्स का इकट्ठा हो जाना, दैट इज़ कोएगुलेशन. तो कोएगुलेशन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल दोनों में होता है. और जो लायोफोबिक सॉल है उसमें अलग तरीके हैं, लायोफोबिक में अलग तरीके हैं उसको प्रेसिपिटेट करने के या सेटल करने के. तो लायोफोबिक सॉल में जो कुछ मेथड्स हैं, नंबर 1 इज़ बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. अभी हमने देखा है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स मूव टूवर्ड्स ऑपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स एंड प्रेसिपिटेटेड. तो इस तरह से यदि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर जाते हैं. इस तरह से जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो सेटल हो जाएंगे. दूसरा है बाय मिक्सिंग टू ऑपोजिटली चार्ज सॉल. यदि दो अपोजिटली चार्ज सॉल को मिला दिया जाए तो उनमें न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा एंड जो कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं वो प्रेसिपिटेट होते हैं. नेक्स्ट इज़ बाय बॉइलिंग. व्हेन अ सॉल इज़ बॉइल्ड द एड्सॉर्ब्ड लेयर इज़ डिस्टर्ब्ड. तो एक्चुअली हमने अभी थोड़ी देर इससे पहले देखा है कि कोलॉइडल पार्टिकल्स के ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव एक चार्ज पार्टिकल की एक लेयर होती है. तो ये जो लेयर है जब हम बॉयल करते हैं यही लेयर डिस्टर्ब होगी और इस वजह से प्रेसिपिटेशन होगा. फिर है द परसिस्टेंट डायलिसिस. यदि डायलिसिस को बहुत देर तक किया जाए, लगातार किया जाए, तो सारा का सारा इलेक्ट्रोलाइट उसमें से अलग हो जाएगा और केवल कोलॉइडल पार्टिकल्स बच जाते हैं जो कि कोएगुलेट होंगे. नेक्स्ट इज़ बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर देते हैं तो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेसिपिटेट होता है. द आयंस रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज ऑन द कोलॉइडल पार्टिकल इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग आयन. तो जो न्यूट्रलाइजेशन के लिए जो चार्ज पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होगा उसको कोएगुलेटिंग आयन कहते हैं. यदि मान लीजिए नेगेटिव सॉल है तो उसमें नेगेटिव सॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होगी और पॉजिटिव सॉल को न्यूट्रलाइज करने के लिए नेगेटिव आयन की ज़रूरत होती है. तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करने से भी प्रेसिपिटेशन होता है. इस मेथड के लिए एक रूल है दैट इज़ नोन एज हार्डी-शुल्ज़ रूल. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ फ्लोक्यूलेटिंग आयन एडेड द ग्रेटर इज इट्स पावर टू कॉज प्रेसिपिटेशन. तो लायोफोबिक सॉल को प्रेसिपिटेट करने के लिए हम जिस आयन को ऐड कर रहे हैं वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. तो जितनी ज़्यादा उस आयन की पावर होगी उतना ज़्यादा कोएगुलेशन या प्रेसिपिटेशन होगा. तो यहाँ पर हम कुछ प्रेसिपिटेशन के लिए ऑर्डर देख सकते हैं जो हमने फ्लोक्यूलेटिंग जो हमने आयंस ऐड किए हैं इसमें. द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव सॉल, the flocculating power is in the order of aluminium 3+, barium 3+, and sodium plus. तो सबसे ज़्यादा जो कोएगुलेशन करेगा वो एल्यूमिनियम 3+ करेगा और उससे कम बेरियम 2+ और लास्ट में सोडियम प्लस. तो यानी कि एल्यूमिनियम के ऊपर क्योंकि सबसे ज़्यादा चार्ज है तो ये सबसे ज़्यादा कोएगुलेशन करेगा कोलॉइडल सॉल का. सोडियम के ऊपर कम चार्ज है तो एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में ये कम कोएगुलेशन करेगा. सो दिस इज़ हार्डी-शुल्ज़ रूल. अब हम देखते हैं कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक सॉल. तो लायोफिलिक सॉल एक्चुअली स्टेबल सॉल होते हैं. 2 फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक सॉल. ये जो फैक्टर्स लायोफिलिक सॉल को स्टेबल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है द चार्ज. पहला है उनका चार्ज और दूसरा है
सॉल्वेशन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो यदि इन दोनों फैक्टर्स को हटा दिया जाए उस कंडीशन में लायोफिलिक सॉल्व कोएगुलेट हो जाते हैं। एंड इसको कोएगुलेट करने के, लायोफिलिक सॉल्व को कोएगुलेट करने के दो तरीके हैं। नंबर 1 इज़ बाय एडिंग एन इलेक्ट्रोलाइट। तो यदि मान लीजिए पॉजिटिव सॉल्व है तो इलेक्ट्रोलाइट के नेगेटिव आयन से वो कोएगुलेट हो जाएगा। एंड सेकेंड मेथड इज बाय एडिंग अ सुइटेबल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट भी लायोफिलिक सॉल्व को कोएगुलेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को प्रोटेक्ट किस तरह से किया जाए? तो लायोफिलिक सॉल्व्स आर मोर स्टेबल देन लायोफोबिक सॉल्व as we know very well, because lyophilic colloidal particles are covered by a sheet of liquid in which they are dispersed. तो एक्चुअली लायोफिलिक कोलॉइडल सॉल्व पार्टिकल्स उनके चारों तरफ डिस्पर्शन मीडियम की एक लेयर बन जाती है और इस वजह से वो स्टेबल होते हैं। When lyophilic salt is added to lyophobic salt, the lyophilic salts form a layer around lyophobic particles and protect the later from electrolytes. So lyophilic colloids used for this purpose are called protective colloid. यहाँ पर हम फिगर देख सकते हैं। ये जो है बीच में आप जो बड़ा सर्कल देख रहे हैं, दिस इज लायोफिलिक कोलॉइडल पार्टिकल्स, और जो बाहर ब्लैक कलर के आप डॉट देख रहे हैं ये लायोफोबिक सॉल्व पार्टिकल्स हैं जो उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब हम एक कैटेगरी पढ़ते हैं इमल्शंस की। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। सो एक्चुअली इमल्शंस आर लिक्विड कोलॉइडल सिस्टम, यानी कि डिस्पर्स्ड फेज भी लिक्विड है और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए इन दोनों लिक्विड्स की कि ये दोनों लिक्विड्स इममिसिबल होने चाहिए, यानी कि आपस में मिक्स नहीं होने चाहिए या फिर पार्शियली मिसिबल हो सकते हैं। तो इन दो इममिसिबल लिक्विड्स या पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स को हम शेक करें तो इमल्शन बनता है। अब ये दो तरह के इमल्शंस हैं। नंबर 1 ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। यहाँ पर देखिए ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर, ये फिगर आप देख लीजिए कि जो येलो कलर के ड्रॉपलेट्स हैं ये ऑयल के हैं। तो ऑयल डिस्पर्स्ड फेज है और जो वाटर है वो डिस्पर्शन मीडियम है, यानी कि ऑयल को वाटर में मिक्स किया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं मिल्क एंड वेनिशिंग क्रीम। दूसरा है वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। तो यहाँ पर वाटर डिस्पर्स्ड फेज है एंड ऑयल डिस्पर्शन मीडियम है। ये फिगर आप देखिए, जो आपको ये ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रहे हैं ये वाटर के हैं और जो कि डिस्पर्स फेज है, और जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है ये डिस्पर्शन मीडियम है जो कि ऑयल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके एग्जांपल हैं बटर एंड क्रीम। तो क्योंकि ये इममिसिबल है इसलिए इजीली सेपरेट हो सकते हैं। सो दैट्स वाई इन इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए एक एजेंट की ज़रूरत होती है जिसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट कहते हैं। For stabilization of an emulsion, a third component called emulsifying agent is usually added. The principal emulsifying agent for oil in water are proteins, gums, natural and synthetic soaps. While for water in oil, heavy metals, salts of fatty acids, long chain alcohol, etc. they are utilized. So it is very very important category of colloids known as emulsion. अब हम यहाँ पर दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ सरफेस केमिस्ट्री एंड दिस इज़ अबाउट द कोलॉइड्स विच आर अराउंड अस। हमने पूरी सरफेस केमिस्ट्री पढ़ी है, बहुत तरह के इसमें कोलॉइड्स पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ा है। तो कोलॉइड्स में हम हमारे आसपास कोलॉइड्स कहाँ पर हैं, क्या है कोलॉइड्स हमारे डेली लाइफ में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। Colloids around us. Colloids play very significant role in nature and our daily lives. Some important examples are as follows. Blue color of the sky. It is due to scattering of light by colloidally dispersed dust particles in air that sky looks blue.
fog and mist. They are colloidal systems. When large mass of air containing dust particles cools below its dew point, the moisture present in the air condenses on the dust particles, forming fine droplets. Food items. Most of the food items are colloidal in nature. Blood. It is a colloidal solution of an albuminoid substance. Soils. Fertile soils are colloidal system, and on account of their colloidal nature, soils absorb moisture and nourishing materials for plants. Paints. All paints are colloidal dispersions of solid pigments in a liquid medium. Medicines. Many medicines are colloidal in nature. The medicines in colloidal form are easily absorbed by body tissues and are more effective. Digestion of fats. The digestion of fats is aided by emulsification. So students, this is all about importance of colloidal solution in our life. So this is all about surface chemistry, and go through these 4 videos and watch again and again. You can easily understand this. Now application. Thank you, children.